Good morning, students. Today I will discuss solution of the system of linear equation by matrix method. So before coming to our topic, we have to know some important terms. जदि गोटे तुमको linear equations देइथिबो तार केतोडे केमति हमें solution काढिबा ताले गोटे solution माने कोन सेतरो consistent माने कोन inconsistent माने कोन आगे हमें जानिबा दरकार. Suppose here you write, let the system of equations be a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x b3y plus c3z is equal to d3. So this is a linear system of linear equations with three variables. Here you see that three variables are x, y and z. Suppose this system is considered as 1. So what do you mean by, first you have to know the important terms. So what do you mean by solution dear? So what do you mean by solution? ताले आगे हमें जानिबा को पड़िबो हम पाखरे तो इक्वेशन अछि ताले आगे सॉल्यूशन टी कोन ए सेट ऑफ वैल्यूज of the variables which satisfy all the linear equations is called a solution of the system 1. ता माने बेहला a set of values of the variables, that is here you see x, y and z with the variable. ताले सेइजरे हमें जदि set of values of the variable which जदि satisfy the all linear equation, प्रत्येक लिनियर इक्वेशन को जो वैल्यू सैटिस्फाई करिवो ताकू तागर हमें कोन बोली कहिबा ना सॉल्यूशन कहिबा. एबे क्वेश्चन उठिला सॉल्यूशन भी केते प्रकार अछि. यूनिक सॉल्यूशन आसी पारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आसी पारे. ता पई हमें गोटे टर्म जानिबा, दिस इज नोन एज consistent माने हला ए सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इज सेड टू बी consistent, then it has solution. ता माने से system of equation रो हमें गोटे solution पाइबा, and that solution is either unique solution or infinitely many solution. So here you write consistent, a system of linear equations is said to be consistent, then it has solution. That is a unique solution or infinitely many. ताले लक्ष्य करो जो सिस्टम ऑफ consistent हबो ताले it has solution. एबे क्वेश्चन आसिला से भलिया इक्वेशन अछि जोथरे कि हमें किछि सॉल्यूशन पाइबानी. सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें कोन बोली कहिबा सेकु ना इनकंसिस्टेंट. देयरफॉर हियर यू राइट इनकंसिस्टेंट. A system of linear equations is said to be inconsistent, then it has no solution dear. एडी गोटे कथा मन रख एडी, if the system of equation is inconsistent then it has no solution. ताले बे कंसिस्टेंट वाले सॉल्यूशन पाइबा, से सॉल्यूशन टा कोन होई पारे, यूनिक सॉल्यूशन होई पारे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. बट इनकंसिस्टेंट बेले आमे किछि सॉल्यूशन पाइबा नाही. तो एई जिंस गुडा को जानिला परे आमे केमति सॉल्यूशन करा जाय लिनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आमे जानिबा. नेक्स्ट
कौन आसिला ना सॉल्यूशन ऑफ द system of linear equation by matrix method. Here you write solution of the system of linear equations by matrix method, or we call it as a or matrix inversion method. Matrix inversion method. देख टे आमर एथुरु निश्चित भाव काउंसिल एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन पड़े 6 मार्क केमती ताको आमे सॉल्व करबा हमको लिनियर इक्वेशन देइथिबो गिवन देइथिबो सेथुरु आमे केमती बाय मैट्रिक्स मेथड यूज करी करी केमती आमे सॉल्यूशन तार काढी परिबा. फर्स्ट वी हैव टू राइट द लेट द लिनियर इक्वेशंस बी. हियर यू राइट लेट द लिनियर equations be a1x plus b1y plus c1z which is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z which is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. देख ये मु कौन नेली ना तीनटा इक्वेशन नेली आउ तीनटा वेरिएबल अच्छी से भाई आम दीटा इक्वेशन दीटा वेरिएबल नहीं करी भी सेम प्रोसीजर रे करि परिबा. ताले ए जो इक्वेशन गुडा आम नेले आकु आम सॉल्व करबा बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ताले आम केमती ताको सॉल्व करबा. फर्स्ट वी हैव टू राइट द अबव इक्वेशन. द अबव इक्वेशंस can be written in matrix form. फास्ट रे ताको आमे मैट्रिक्स फॉर्म रे लेखिबा. ताले मैट्रिक्स फॉर्म रे लेखिले ताको आमे को फॉर्म रे केमती लेखा होची ठीक देखो. ताले फर्स्ट वी हैव टू राइट a1x plus b1y c1z. सेकंड केस a2x plus b2y plus c2z, and the third one is a3x b3y c3z which is equal to d1 d2 d3. We know that if these two matrices are equal, then the first line is equal to d1, then the second equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. So again we have to convert this part in the matrix form. केमिति ताको आउथरा हमें सजेइबा टिके लक्ष्य करूथा. देखो कोफिशिएंट ऑफ x को हमें लिखले a1 a2 और a3, coefficient of y को b1 b2 b3, and the coefficient of c is c1 c2 and c3 which is multiplied with x y and z here. Here you see if you multiply row with column then it forms a1x plus b1y plus c1z. देखो ये फर्स्ट से आसी एबे भी लक्ष्य करो this is a matrix of order 3 by 3. Again the second part is this is also a matrix of order 3 by 1. ताले number of row of first column of first matrix is equal to number of row of the second matrix. ताले हमें matrix multiplication करी परिबा. This equal to d1 d2 d3. देखु तो बटिके केमिति लेखा होची से पार्ट ताला इंपोर्टेंट पार्ट. एबे देखो ताको मु केमति एबे सजेइबी. ए बळिया जेतले सजेइ देली this is of the form ax which is equal to b. ता माने कोन हला a is a matrix. ता माने a टा हला कोन ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 रो matrix, and that capital X is x y and z, and b which is equal to matrix d1 d2 and d3. Therefore here we can write this as a where a which is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, this matrix third order matrix, and capital X is equal to x y and z. Here you see, and b which is equal to d1 d2 and d3. ताको हमें आगे ना दे देले कोटा कोन a ढाला ई मैट्रिक्स टा x ढाला x y z b ढाला d1 d2 d3 रो
मैट्रिक्सटा ये जो x इक्वल टू b दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 1 एबे टिके देखो सेथुरु आमे केमती वैल्यू x y z रो काढिबा ताले एबे लक्ष्य करो फ्रॉम 1 ax which is equal to amaro kete अछि डियर ax which is equal to b if you multiplying a inverse on both the side जदि आमे दी साइड रे a inverse को आमे मल्टीप्लाइंग करिबा ताले लक्ष्य करो एटा कोन आछि दी साइड रे मु a inverse को मल्टीप्लाइंग कले त माने मल्टीप्लाइंग a inverse on both the side दी साइड रे मु a inverse को मल्टीप्लाइंग कले एबे देखो आमे आकु जदि एई फॉर्मेट रे सजेई दबा एंड दैट कैन बी रिटन एज a inverse a into x which is equal to a inverse b that means को लॉ अनुसार आकु आमे कले ना बाय associative law एबे देखो again we know that a inverse of a which is equal to I identity matrix into x which is equal to a inverse b that means here you can write this as a inverse a which is equal to identity of x again मु तुमको एक्सप्लेन करिथिली इन द प्रीवियस क्लासेस कोन ना आइडेंटिटी सहित जेउ मैट्रिक्स ता मल्टीप्लाइंग करिबा दिस इक्वल टू हमें कोन पाइले ना खाली सेही मैट्रिक्स ता पाइले दैट मींस वी कैन राइट दिस एज x इक्वल टू a इनवर्स b देखो केमती हमें बाहर करिबा x y z रो वैल्यू ताले जो लेफ्ट हैंड साइड x again which is equal to in the last class I had discussed a inverse which is equal to adjoint of a divided by determinant of a therefore here we can write this as a instead of a inverse we can write this as a adjoint of a into b divided by what determinant of a and the left hand side x is equal to what x y and z and the right hand side is adjoint of a into b divided by determinant of a एबे देखो टिके लेफ्ट गोटे मैट्रिक्स आसिला आमे राइट हैंड साइड को जेतबेले सॉल्व करिवा निश्चित भारे गोटे मैट्रिक्स टे आसीबो ताकू आमे सॉल्व कला परे कोन पाइबा नामे x आउ y आउ z रो वैल्यू पाइबा टू सिंपलीफाई दिस मैट्रिक्स टू simplify the above matrix we get the values of x y and z देखो आमे आकु जेतबेले सॉल्व करि सारिबा ताहले एथुरु आमे कोनटा वैल्यू पाइबा ना x y and z रो वैल्यू आमे पाइबा हला बुझी पारलो तो हमकु कोन कोन ताले इक्वेशन रे आगे काढिबा को पड़िबो फर्स्ट ताको आमे सजेई के लिखिले x इक्वल टू b फॉर्म को आनी साला परे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a आगे काढिबा डिटरमिनेंट ऑफ a काढी सारले तापर हमें काढिले adjoint of a काढिले adjoint of a सइला तापर हमें adjoint of a into b काढिबा तापर जाईकरी हमें आनिकरी ए फार्मूला रे पकेइले ताला हमें कहारो वैल्यू पाइबा ना x y आउ z रो वैल्यू पाइबा देखो ए गोटे इंपोर्टेंट नोट टे अछि केमती हमें जानिबा सदाले मन रखिथिबो ताको लक्ष्य करो आमे कहले जे ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म को फॉर्म रे आसे ax इक्वल टू b मन रखि थाओ से इक्वेशन टा को फॉर्म रे आसे ax इक्वल टू b जदी ए b टा राइट हैंड साइड रे जो b अछि एंड दैट b इज ए नल मैट्रिक्स जदी हमर गोटे इक्वेशन गुडा करे राइट हैंड साइड रो वैल्यू जदी खाली 0 पळे आसिला सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डियर जदी एटा b टा नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आसीबो ताहले ताको हमें कोन बोली कहबा देखो सेटा हला होमोजेनियस एटा कहबा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो हियर यू राइट a system of equation ax equal to b is said to be homogeneous if b equal to 0 and 0 that 0 is what null matrix जदि सेटा गोटे नल मैट्रिक्स टा हेइथिबो ताले ताको हमें किस कोन कहबा दिस इज नोन एज
homogeneous system of equation. Otherwise it is called non-homogeneous system of equation dear. देखो या भल भाव मन रखुव जिते आम थर्ड ऑर्डर रे हो राइट हैंड साइड रो वैल्यू जदि सब जीरो पलि आसला सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजिनियस इक्वेशन. जदि राइट हैंड साइड रे सपोज राइट हैंड साइड इक्वेशन यही भाया थी 2x + 3y + 4z = 1, 2x - 3y + 4z = 0, 3x + 5y + 4z = 3. बट दिस इज ए नॉन होमोजिनियस इक्वेशन. जदि राइट हैंड साइड रे इक्वेशन गुड़ा सब जाक जीरो आसला सच टाइप ऑफ इक्वेशन वी कॉल इट एज ए होमोजिनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ताकू आमे होमोजिनियस इक्वेशन कहती. एबे क्वेश्चन उठिला जदि आमर फॉर्मूलाटा हला कोन बाहर करिया पई ना x कैपिटल X व्हिच इज इक्वल टू adjoint of A into B divided by determinant of A. एबे क्वेश्चन उठिबो जदि determinant of A टा not equal to 0 हला ताहले आमे निश्चित भाव में द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन पाइबा हला. किंतु एबे क्वेश्चन उठिला जदि एबे डिटरमिनेंट ऑफ ए टा 0 हे गला जदि सपोज एडी डिटरमिनेंट ए टा 0 हे गला आउ adjoint of A into B टा not equal to null matrix आसिला ताले लक्ष्य करो if the denominator which is equal to 0 and numerator is equal to some numerical value then or numeric is a matrix then it is not defined, it has no solution. Therefore the system of equation is said to be ताको हमें कौन बोली कहती ना inconsistent. If the system of equation is inconsistent then it has no solution. लक्ष्य करथुबो ताले हमें इथरु केते गुडे कंडीशन जानिबा and that condition of consistency is very important for solving the linear equation by using matrix method. So first is condition of consistency. First we have to know condition of consistency. देखो कौन तार condition of consistency रहउची condition of consistency. जानिबा हमें तो फॉर्मूला जानी गले. द फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इफ determinant of A which is not equal to 0. Here you see if the determinant of A is not equal to 0 then the system of equation is consistent. If the system of equation is consistent then it has a solution. If it has a solution and that solution is unique solution. A not equal to 0 then the system of linear equations, the system of linear equation is consistent. Here mu agru tumko already explain karichi. What do you mean by consistent? It has solution. So the system of linear equation is consistent and has a unique solution. It has a unique solution. जदि डिटरमिनेंट ऑफ ए रो वैल्यूटा हमर नॉट इक्वल टू 0 होता है ताहले आमे एठी गोटे यूनिक सॉल्यूशन पाइबा. एबे क्वेश्चन उठिला सेकंड वन इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू 0 डियर. हियर यू सी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 then and एठी आउट कथा देखो कि इंपोर्टेंट पॉइंट होची एठी if determinant amar 0 he gala. Ebe question arises if determinant of A which is equal to 0 and adjoint of A into B is a matrix and that matrix is a null matrix. जदि से ऊपर पार्ट भी आमे null matrix पाई गले ताहले हमर वैल्यूटा तो निश्चित भाବରେ null matrix टे पळे आसीबो. ताहले सेठी आमे कोन कहिबा ना the system of equation is consistent and has infinitely many solutions. Therefore here you can write this as a if the determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B which is equal to D, here you see and that capital D is called it as a null matrix. देखो तो if adjoint of A into B जदि हमर null matrix हैला then the system of linear equation is consistent
and has infinitely many solution ଭଲ ଭାବରେ ତା कंडीशन गुड़ाक से अनुसार आम क्वेश्चन सॉल्व करवा मु तुमको गोटे दुटा क्वेश्चन आज सॉल्व करी कौन केमी सॉल्व होची जानव कहीं निश्चित भाव में काउंसिल गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पड़े सो दिस पार्ट इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट एंड नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट हियर यू सी इफ डिटरमिनेंट ऑफ a which is equal to 0 and the numerator that is adjoint of a into b which is not equal to a null matrix is not equal to a null matrix. That means the numerator is not equal to a null matrix but the denominator that is the determinant of a which is equal to 0 जदि तुमरा denominator equal to 0 ही गला ताल ताको हमें डिफाइन करि परिबानी ताको यदि हमें डिफाइन करि परिबानी then the system of equation has no solution there. Therefore here you can write this as a if determinant of a equal to 0 and adjoint of a into b which is not equal to null matrix then the system of linear equations is inconsistent. Here you write inconsistent. If the system of equation is inconsistent then and has no solution there ताले ए केस रे आमे किछि सॉल्यूशन पाइबानी तीनटा कथा हला फर्स्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 ताहले आमे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट आ सेथुरो गोटे आमे सॉल्यूशन पाइबा एंड दैट सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन गोटे कथा सेकंड कौन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड adjoint of a into b which is equal to null matrix hela then the system of linear equation is consistent but infinitely many solution mu taku aji gote question karibi kemti taku infinitely many solution asuchi next third point if determinant of a equal to 0 but adjoint of a into b which is not equal to null matrix then the system of linear equation is इनकनसिस्टेंट जितेबाला गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकनसिस्टेंट हो ताहले आमे सेथिरो किछि सॉल्यूशन पाइबानी बुझिपारलो सो आई विल सॉल्व वन और टू क्वेश्चन सो दैट इट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर देखो तुम बही रु गोटे क्वेश्चन टे सॉल्व करूची एक्सरसाइज तुम 5b रो क्वेश्चन अछि एग्जामिनिंग कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी solve the following equation by matrix method फर्स्ट मु लिखुची से इक्वेशन गुड़ाक देख से इक्वेशन गुड़ाक कौन कौन अच्छी को भाया फॉर्मेट रे ताको लेखा जाए केमती ताको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा जाए वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ताको टे भल भाव टिके देख केमती होउची केमती ताको लेखा होउची फर्स्ट एग्जामिनिंग दी कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी गिवन आगे लेख क्वेश्चन टाको एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट बिट given the linear equations are x minus y plus z is equal to 4 2x plus y minus 3z is equal to 0 x plus y plus z is equal to 2 dear from this equation आमे ताको मैट्रिक्स मेथड रे सॉल्व करिबा आ सेथुरु आमे काहारो वैल्यू बार करिबा ना x y आ z रो ताले ई इक्वेशन गुडा को आगे मु ना दे देली 1 आकु ने गेले 2 आकु दे देली 3 बोले हला ताले मु तुमको फर्स्ट स्टेप रे तले थ्योरी रे कहउतली सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फॉर्म को आनिबा ताले इट लिखिले द above equations can be written in the matrix form dear ताकू जदि आमे मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिबा ताले आगे हमें केमती लिखुचन देखो x minus y plus z 2x plus y minus 3z x plus y plus z which is equal to 4 0 and 2 लक्ष्य कर को फॉर्म रे आगे लिखिली आम इक्वालिटी मैट्रिक्स शिखी आगे से फॉर्म रे लिखिदेली नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू कन्वर्ट ताकू एबे केमती कन्वर्ट कली टिके लक्ष्य कर आगे
x रो जो कोफिशिएंट गुडा को थिला ताकू कॉलम वाइज लिखि देले एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 to 1 then is minus 1 1 1 y रो कोफिशिएंट नेक्स्ट z रो कोफिशिएंट 1 minus 3 and 1 into x y z which is equal to 4 0 and 2 देखो ताकू एबे सजै देली सेथरे मु एबे लिखि थिली दिस इज of the form ax equal to b, that means here a equal to this matrix and capital X is equal to the matrix xyz and b is equal to the matrix 4 0 2. So this is of the form ax is equal to b dear, and take it as equation number 4. Here you write where a is equal to 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, 1 1 1, and capital X is equal to x, y and z, and b which is equal to 4 0 2. এই প্রসিজর অনুসারে তেণিকি ওড়িশা জায়গার যিয়ে বি দেখু তুমি ফুল মার্ক 6 ରୁ 6 পাইব বাটটা এই অনুসারে এবে লিখুথিব তাহলে এবে দেখ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ক্যাপিটাল এক্স তাহলে আমি ক্যাপিটাল এক্স টাকু যেহেতু বাহার করিবা তাহলে তাকু আমি কোন লিখি পারিবা ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 4 উই গেট ax ইকুয়াল টু b বলি আমি তাকু নেইছন্তি সেই ফর্ম রে সেটা আছে তাহলে এবে লক্ষ্য করো ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 4 ax which is equal to b dear. If you multiplying a inverse on both the side रे जदि आमे a inverse को multiplying करिबा this side रे एट साइड लिखिले multiplying a inverse on both the sides. Again here you see by using associative law ताले आको आमे जदि सजाई दबा a inverse a into x equal to a inverse of b by कोन लॉ अनुसार कले by associative law. लक्ष्य करथुबो कहा परे कोटा करा होची तापरे आसला सेमती इयाला हमर आइडेंटिटी ऑफ x I into x equal to a inverse of b. Here you can write this as a inverse of a which is equal to identity or unit matrix. आमे ताकू जानी चंती ताले identity matrix which is multiplied with any matrix ताले आमे सही matrix टा पाइबा ताले x equal to आमे कौन पाइले a inverse b. Again देखो x equal to कौन आमो फॉर्मूला केमते आमे a inverse को काटुले a adjoint of a divided by determinant of a. So here we can write this as a adjoint of a into b divided by determinant of a. आके फॉर्मूला टाको आगे बॉक्स करिके रखिलो आनी कि आमे ए फॉर्मूला रे लास्ट रे पकेइबा गोटे गोटे काढी सारला परे आको नंबर 5 दे देली. एबे देखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डियर. फर्स्ट आमे कोटा को बाहर करिवा ना डिटरमिनेंट ऑफ ए. ए लिखिलो प्रोसीजर देखो केमते लिखा होची टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए आगे लिखिला बेले सेही फॉर्मेट रे लिखुतबो वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए is equal to देखो एटी आमे a टाको केते नैथिले 1 minus 1 1 एटा मैट्रिक्स रे थिला जेतोले ताको आमे डिटरमिनेंट काढिबा ताले से साइन टाको लेखा कर मु कोन देइछि एटी डिटरमिनेंट चिन्ह देइछि एठी आ मैट्रिक्स चिन्ह दबनी डियर. हियर यू कैन यूज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट ताले बे कोन आसिला देखो 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 ताले आको आमे सॉल्व करिबा देखिबा कोन आसी देखो 1 into eliminate कर देली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ रोइला ई पार्टटा एटा केते आसी ना 1 plus 3 1 into 1 1 1 into -3 ता आगे उडा माइनस अछि सो दिस इक्वल टू +3. अगेन इन द सेकंड केस हियर यू सी minus of -1 is +1 into again you eliminate first row and second column 2 into 1 2 1 into -3 ता आगे आउट माइनस अछि सो दिस इक्वल टू +3 1 into again eliminate the first row and third column rest is 2 1 1 1 ताको जे हमें मल्टीप्लाइंग करिबा ताले एटा आसला 2 - 1 ताले लक्ष्य करो हमें कोन पाउचंदी 4 + 5 + 1 so this value is equal to 10 dear. If this determinant value is not equal to
तामाने नॉट इक्वल टू आमे 0 पाइले इफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 ताहले हमर निश्चित भाव में ए इनवर्स टा एक्जिस्ट करिवो ए इनवर्स टा जदी एक्जिस्ट कला तुमको मु गत क्लास रे कहितली भी ए इनवर्स एक्जिस्ट कले दैट इज ए इज की मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखो ताले हमर डिटरमिनेंट टा नॉट इक्वल टू 0 हो गला नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड adjoint of a आमे काढिबा हम फार्मूला को देखो नेक्स्ट आमे काढिबा adjoint of a देखो केमती प्रोसीजर रे adjoint of a कोडा होउची एटी लिखि देला ऊपर टू फाइंड adjoint a लगा करो टू फाइंड adjoint a तुमको कही प्रीवियस क्लास रे जेतबेले adjoint काढुथबो इन केस ऑफ ए थर्ड ऑर्डर ताले तुम एटी साइड रे लिखि दउथबो तार साइन गुडा को जेतबेले हमें कोफैक्टर काढिबा ता साइन को साइड रे लिखि दउथबो को बळे आसीबो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड C11 so C11 which is equal to co-factor of 1 dear तुमको प्रीवियस क्लास रे भी सही सेम कथा मु कहितली if 1 plus 1 which is equal to 2 and that 2 is the even जदि डी इवेन आसीबो ताले हमें डायरेक्ट को साइन डाइडी यूज कर दबा प्लस साइन तापर तुमको सिखाइतली काको एलिमिनेट करबा ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें कोन पाइले ना डिटरमिनेंट ऑफ 1 -3 1 1 तुम एटी डायरेक्ट सॉल्व कर दे पारिबो प्लस एटी 1 + 3 which is equal to आमे केते पाइले +4 ताले एबे देखो नेक्स्ट आमे बाहर करबा C12 मींस co-factor of co-element रो काढिबा ए जो C12 A12 रो N2 A12 means -1 so here we can write this as a -1 again I have already explained you dear 1 + 2 which is equal to 3 and this is odd therefore here you write it hame minus sign dele jetole minus sign dele kahaku eliminate kariba first row au second column को और रेस्ट होइला देखो 2 - 3 1 au